A very good day, students. Today we will discuss about context-free grammars or context-free languages. We have already studied about regular grammar or regular languages. All the languages that is accepted by a finite automata are called regular grammars or regular languages. And all the languages or grammars accepted by push-down automata. This is another machine push-down automata. All the grammars or languages accepted by push-down automata are called context-free grammars. Why it is called context-free? What is the importance of context-free grammar? That we will discuss in the coming slides. So first, what is a grammar? The grammars express the languages. Grammars. What is the purpose of grammars? The grammars express the underlying languages. For example, the English language grammar, the grammar of English language. For example, this sentence is created by noun phrase followed by predicate. Noun phrase is produced by article followed by noun, and predicate is produced by through verb. Where what is the article? A and the is the article. What is a noun? Cat and dog are noun. And what is a verb? The runs and sleeps are verbs. So this is an example of English language. So how we will use this we will see in the coming slides. Now, what we have discussed in the previous slide, sentences produced by noun phrase followed by predicate. Noun phrase produced how? Article followed by noun, and predicate is produced using verb. Article is a and the, noun is cat and dog, and verbs is runs and sleeps. Now, suppose we want to generate the dog sleeps using this grammar rule. So, first we know that sentence is produced using noun and predicate. Sentence is produced using noun and predicate. Now, what we have to create? We need one article, one noun, and one verb. So, but here the things are noun, phrase, and predicate. So, predicate is how the predicate is produced through verb. So we replace predicate with the verb, and noun phrase remains same. In one line we use just one rule. In one line we use just one rule from the available rules. Next, noun phrase is replaced by article noun. Noun phrase replaced by article noun. Now, the article is replaced by the the noun and verb remains same. Noun is replaced by dog, the dog verb remains same, and then the verb is replaced by sleeps. So we produced the sentence the dog sleeps. ठीक है जी, इसी तरीके से हम द कैट स्लीप्स बना सकते हैं, ए कैट स्लीप्स बनाते हैं, ए डॉग स्लीप्स बना सकते हैं. इनमें से हम कोई भी चीज़ें बना सकते हैं यूजिंग द रूल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. दिस प्रोडक्शन ऑफ दिस सेंटेंस इज कॉल्ड डेरिवेशन ऑफ द स्ट्रिंग. द डॉग वॉक्स भी कर सकते हैं. अगर यहाँ पे वर्ब स्लीप्स की जगह पे वॉक्स होगा तो हम वॉक्स कर लेंगे. ठीक है, अगर वॉक्स होगा तो वॉक्स कर लेंगे. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. अगेन ए कैट रन्स, मान लीजिए कैट रन्स आपने बनाना है तो वही हमारे पास 3 रूल्स हैं और ये नीचे 6 हमारे पास इन की रिप्लेसमेंट है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर. सो सेंटेंस प्रोड्यूसेस नाउन
phrase and predicate. Predicate is replaced by verb. Predicate is replaced by verb. Noun phrase is replaced by article and noun using the rule number 2. ठीक है जी, यहाँ पे हमने पहले वाले में कौन सा है, यहाँ पे हमने रूल नंबर 3 यूज किया था, यहाँ पे हमने रूल नंबर 2 यूज कर दिया। ठीक है जी, नेक्स्ट फिर हमने आर्टिकल को रिप्लेस कर दिया ए के साथ, तो हमने रूल नंबर 4 यूज कर लिया। सो रूल नंबर 4 यूज हो गया यहाँ पे। फिर हमने नाउन को कैट के साथ रिप्लेस कर दिया, नाउन को कैट के साथ रिप्लेस कर दिया, तो रूल नंबर 6 यूज कर लिया। अगर ये मेरा 5 रूल नंबर है तो इसको 6 को यूज कर लिया, यहाँ 4 को यूज किया था, सो इट इज 6। रूल नंबर 6 इज यूज्ड रिप्लेसिंग नाउन विद कैट। देन वर्ब को हमने रन्स के साथ रिप्लेस कर दिया, रूल नंबर 8 यूज कर लिया। सो हमारे पास क्या आ गया, ए कैट रन्स। So using these English language rules, we produced the string a cat runs. We produced a sentence a cat runs. This is called a derivation of a string from the rules. So ये जो previous English language की grammar थी, उससे हम ये वाले सारे के सारे sentence बना सकते हैं। A cat runs, a cat sleeps. The cat runs, the cat sleeps. A dog runs, a dog sleeps. The dog runs, the dog sleeps. These strings can be derived from the previous grammar rules. फिर प्रोडक्शंस की बात करता है, इनको हम प्रोडक्शंस बोलते हैं। सीक्वेंस ऑफ टर्मिनल्स और सिंबल्स, सीक्वेंस ऑफ टर्मिनल और सिंबल्स को ये जो पूरी चीज़ है, इसको मैं प्रोडक्शन रूल्स बोलता हूँ। ये जो स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखे हुए हैं, दिस इज सीक्वेंस ऑफ टर्मिनल्स और सिंबल्स, और ये जो चीज़ लिखी हुई है इसको मैं वेरिएबल्स कहता हूँ। ये कैपिटल लेटर भी हो सकते हैं, ये इस तरीके से लिखे हुए कोई चीज़ भी हो सकती है इस एंगल्ड ब्रैकेट के अंदर। ये जो सेंटेंस है ये भी वेरिएबल है, नॉन टर्मिनल है। ये दोनों क्या है, सीक्वेंस ऑफ वेरिएबल्स है। ये सीक्वेंस ऑफ वेरिएबल्स है, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ वेरिएबल्स, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ टर्मिनल, क्योंकि ये वेरिएबल है, इनसे नई चीज़ प्रोड्यूस की जा सकती है। कैट से कोई नई चीज़ प्रोड्यूस नहीं की जा सकती। नाउन और फ्रेज को रिप्लेस किया जा सकता है, नाउन फ्रेज को या प्रेडिकेट को रिप्लेस किया जाता है, बट कैट को किसी चीज़ के साथ रिप्लेस नहीं किया जाता। जिसको रिप्लेस नहीं किया जाता उसको हम टर्मिनल्स या सिंबल्स कहते हैं, और जिनको रिप्लेस किया जाता है उनको हम वेरिएबल्स या नॉन टर्मिनल कहते हैं। और अगर उनकी कलेक्शन हो तो वो सीक्वेंस ऑफ वेरिएबल्स या सीक्वेंस ऑफ नॉन टर्मिनल्स हो जाए। एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास ग्रामर है, एस ड्राइव्स ए एस बी, एस ड्राइव्स नल। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो लिखा है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। सो ये जो अब ये मेरा प्रोडक्शन रूल है, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन, दिस होल इज कॉल्ड प्रोडक्शन रूल। ये मेरा वेरिएबल हो गया, ये भी वेरिएबल हो गया। ये है ये मेरा क्या कहते हैं टर्मिनल, आप इसको टर्मिनल के लीजिए, या राइट साइड ये नल हो सकती है, लेफ्ट साइड नल नहीं हो सकती, राइट साइड हो सकती है। सीक्वेंस ऑफ, और ये जो हमारा चीज़ बनी ये सीक्वेंस है किसकी, टर्मिनल्स एंड वेरिएबल्स की, दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसमें ये ए एंड बी टर्मिनल्स है और एस मेरा वेरिएबल है या नॉन टर्मिनल है। ठीक होगी जी बात। सो दिस द एग्जांपल ऑफ वन ग्रामर। चलिए इसी ग्रामर को दोबारा देखते हैं। ये ग्रामर हमारे पास गिवन है, और मान लीजिए मैं इससे ए बी स्ट्रिंग प्रोड्यूस करना चाहता हूँ। क्या प्रोड्यूस करना चाहता हूँ, स्ट्रिंग ए बी। सो हमने सबसे पहले क्या किया, अब पहले वाले सिंबल से शुरू करना है। एस को हमने ए एस बी के साथ रिप्लेस कर दिया, एस को किसके साथ रिप्लेस कर दिया, ए एस बी के साथ, और फिर इस एस को नल के साथ रिप्लेस कर दिया, इस एस को किसके साथ रिप्लेस कर दिया, नल के साथ। यानी कि पहली बार मैंने पहला रूल लगाया, अगली बार फिर मैंने दूसरा रूल लगा दिया, तो हमारे पास क्या स्ट्रिंग बन जाएगा, ए बी बन जाएगा। बीच में से नल नहीं आता, नल दिखाने की जरूरत नहीं है। सो पहले रूल में एस ड्राइव्स ए एस बी, एस को किसके साथ रिप्लेस किया, ए एस बी के साथ, और दूसरे रूल के जब दूसरा रूल अप्लाई किया तो इस एस को किसके साथ रिप्लेस कर दिया, नल के साथ रिप्लेस कर दिया, तो स्ट्रिंग मेरा क्या बन गया, ए बी प्रोड्यूस हो गया। और देखते हैं और कौन कौन से स्ट्रिंग बनाए जाते हैं। मान लीजिए डबल ए डबल बी बनाना है तो कितनी बार आप चलाओगे। सबसे पहले एस ड्राइव ए एस बी, यानी कि इस
पहले वाली स्टार्टिंग सिंबल एस को ए एस बी के साथ रिप्लेस कर दिया, फिर इस एस को फिर ए एस बी के साथ रिप्लेस कर दिया। ठीक है जी, इस एस को किसके साथ कर दिया, ए एस बी के साथ रिप्लेस कर दिया, और फिर इस एस को किसके साथ रिप्लेस कर दिया, नल के साथ रिप्लेस कर दिया। किसके साथ कर दिया जी, नल के साथ। तो मेरे पास क्या बनेगा, डबल ए डबल बी। इसी से ट्रिपल ए ट्रिपल बी, 4A 4B, 5A 5B, ऐसे आप कितने भी स्ट्रिंग बना सकते हो। और देख लीजिए, हम ट्रिपल ए ट्रिपल बी बना सकते हैं, ट्रिपल ए एस ट्रिपल बी, फिर 4A S 4B, और फिर एस को नल के साथ 4A 4B बन सकता है। यानी कि एस पहले, एस को ए एस बी के साथ, फिर एस को ए एस बी के साथ, फिर इस एस को ए एस बी के साथ, फिर इस एस को किसके साथ, नल के साथ। किसके साथ, नल के साथ। तो हमारे पास तीन है, तीन। इस केस में एस को पहले ए एस बी के साथ, फिर इस एस को इस ए एस बी के साथ, फिर इस एस को इस ए एस बी के साथ, फिर इस एस को इस ए एस बी के साथ, और फिर इस एस को नल के साथ। हमारे पास 4A 4B बन जाएगा। ग्रामर, ये किस चीज़ की क्या ग्रामर है, ये कौन सी लैंग्वेज रिप्रेजेंट करती है, सेम नंबर ऑफ एज फॉलोड बाय सेम नंबर ऑफ बीज। यानी कि जितनी ए है उतनी ही बी है, और एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है जी, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एन की वैल्यू 0 0 हो जाएगी, तो ये नल हो जाएगा। ठीक होगी जी बात। एक और इसको लिखने का शॉर्टकट तरीका भी है थोड़ा सा, वो देख लेते हैं क्या है। या आप कह दिए कि ये डेरिवेशंस को लिखने का शॉर्टकट तरीका है हमारे पास, और ग्रामर को लिखने का भी है, दोनों का देख लेते हैं। फॉर 0 और मोर डेरिवेशन स्टेप्स वी राइट एस, और ऊपर स्टार लगा दें ट्रिपल ए ट्रिपल बी। इसका मतलब है एस से हम डिफरेंट प्रोडक्शन रूल लगा के ट्रिपल बी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बजाय कि ये लिखने के एस ड्राइव्स ए एस बी, ए एस डबल बी, ट्रिपल ए एस ट्रिपल बी एंड ट्रिपल ए। ये अगर शॉर्ट में कहीं यूज़ करना हो तो हम इसको इस तरीके से शॉर्ट में यूज़ करते हैं, एस स्टार ट्रिपल ए ट्रिपल बी, यानी कि मल्टीपल प्रोडक्शन रूल लगा के हम ट्रिपल बी प्रोड्यूस कर सकते हैं। एस ड्राइव ए एस बी, एस ड्राइव नल को एस ड्राइव स्टार ऊपर लिख दिया नल, एस ड्राइव स्टार ए बी, एस ड्राइव स्टार ट्रिपल बी, एस ड्राइव स्टार डबल ए एस डबल बी स्टार 5A S 5B, और जितने भी आप कर सकते हो। यानी कि ये ए की एन बी की एन इनफाइनेटली कितने भी प्रोड्यूस कर सकता है। एक और कन्वीनियंट नोटेशन देख लेते हैं, एस ड्राइव ए एस बी, एस ड्राइव नल को मैं शॉर्ट तरीके से ऐसे लिख सकता हूँ, एस ड्राइव ए एस बी और दिस द सिंबल ऑफ और एस ड्राइव नल। जैसे कि मान लीजिए ये हमने इंग्लिश ग्रामर में यूज़ किया, आर्टिकल ड्राइव्स ए, आर्टिकल ड्राइव्स द, तो इसको मैं ऐसे शॉर्टकट में लेता हूँ, आर्टिकल ड्राइव्स ए और द, यानी कि आर्टिकल को ए के साथ भी रिप्लेस किया जाता है, आर्टिकल को द के साथ भी रिप्लेस किया जाता है। यहाँ पे एस को ए एस बी के साथ भी रिप्लेस किया जाता है, एस को नल के साथ भी रिप्लेस किया जा सकता है। अब फॉर्मल डेफिनेशन पे आते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर CFG G is denoted by 4 tuples V, T, P and S. 4 tuples, 4 rows. Tuples means 4 rows. तो वो 4 rows कौन सी हैं? V, T, P and S. V is the set of variables or non-terminals. ये सारे के सारे कैपिटल लेटर होंगे, कैपिटल। ठीक है जी। सेट ऑफ टर्मिनल्स, ये स्मॉल लेटर होंगे, नंबर हो सकते हैं या फिर स्पेशल सिंबल हो सकते हैं, जैसे कि डॉलर, ठीक है जी, हैश, इनको हम स्पेशल सिंबल बोलते हैं, या कोई और। ठीक है जी, हैश, सॉरी, दिस हैश, दिस डॉलर, ये मान लीजिए कोई और है आपके पास, और नंबर हो सकते हैं आपके 0 से 9 के बीच में। P is a set of production rules, जो हमने अभी देखे, these are the production rules, ये production rules हैं, and S is the starting symbol or the starting variable. So this is the formal definition of context free grammar.
ये कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर इज कंसिडर्ड कंटेक्स्ट फ्री। इसको हम कंटेक्स्ट फ्री क्यों कहते हैं या किस लिए यूज कहते हैं? व्हेन इट्स प्रोडक्शन रूल्स कैन बी अप्लाइड रिगार्डलेस ऑफ द कंटेक्स्ट ऑफ ए नॉन टर्मिनल। जो वेरिएबल है या जो नॉन टर्मिनल है, बिना उसके कंटेक्स्ट, उसका कंटेक्स्ट कंसिडर किए अगर हम उसके प्रोडक्शन रूल्स अप्लाई कर सके तो ऐसी ग्रामर को मैं क्या कहता हूँ? कंटेक्स्ट फ्री कहता हूँ। क्या कहते हैं जी? कंटेक्स्ट फ्री। नो मैटर विच सिंबल्स सराउंडेड द सिंगल नॉन टर्मिनल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड कैन ऑलवेज बी रिप्लेस्ड बाय द राइट हैंड साइड। कहता हम उनके सिंबल्स का उसके सिंबल्स को किसने सराउंड कर रखा है, लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है, इसका हमने कोई कंसिडरेशन नहीं लेनी। हमने सिंपली लेफ्ट वाले वेरिएबल की जगह पे राइट हैंड साइड वाली उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देना है। ऐसी ग्रामर को मैं कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर या कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज कहता हूँ। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर जी इक्वल टू VTPS। सो जो सारी की सारी प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन रूल्स, वो किस टाइप की होंगी? कहता ए ड्राइव्स अल्फा टाइप की होंगी। किस टाइप की होंगी जी? ए ड्राइव्स अल्फा टाइप की। यहाँ पे ए क्या है? एक वेरिएबल है, एंड अल्फा क्या है? स्ट्रिंग ऑफ वेरिएबल्स एंड टर्मिनल्स। इट्स द कॉम्बिनेशन। अल्फा क्या है? कॉम्बिनेशन है किसका? वेरिएबल एंड टर्मिनल का। अल्फा के अंदर सिर्फ वेरिएबल हो सकते हैं, सिर्फ टर्मिनल हो सकते हैं। ठीक होगी जी बात? कुछ भी हो सकता है। राइट हैंड साइड में एनीथिंग, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड टर्मिनल्स, एंड लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल, सिर्फ एक मतलब एक ही वेरिएबल। तो प्रोडक्शन रूल्स कुछ ऐसे होंगे। ठीक होगी जी बात? एग्जांपल देख लेते हैं। एस ड्राइव्स ASB, एस ड्राइव्स नल। इसके अंदर क्या VTPS या VTPS ये नहीं आपने देख रहे। VTPS क्या होगा मेरा? तो V है वो सिर्फ एक ही वेरिएबल है, S तो वो हमारा वर्ड जो वर्ड V सेट है, वेरिएबल का सेट है, उसके अंदर सिर्फ S है। T हमारे टर्मिनल दो हैं, A एंड B। नल हमारा टर्मिनल नहीं काउंट किया जाता। ठीक होगी जी बात? नल मतलब नल, तो टर्मिनल्स दो हैं। स्टार्ट सिंबल S है, अगर और वेरिएबल हो तो भी स्टार्ट, अगर S है तो उसको स्टार्टिंग सिंबल कंसिडर किया जाएगा। और प्रोडक्शन रूल्स क्या कहते हैं? एस ड्राइव्स ASB, एस ड्राइव्स नल। तो अगर आपने कोई कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखनी हो तो ये चार चीज़ें आप लिख दोगे तो वो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर बन जाएगी। ठीक होगी जी बात? नेक्स्ट, लैंग्वेज ऑफ ए ग्रामर। ग्रामर की लैंग्वेज, ग्रामर की कॉरस्पॉन्डिंगली लैंग्वेज कौन सी होगी? तो फॉर ए ग्रामर जी द स्टार्ट वेरिएबल इज S। द स्टार्टिंग वेरिएबल क्या होगा? S। लैंग्वेज ऑफ ग्रामर जी इज इक्वल टू W। W इज स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स और नल, या तो और स्ट्रिंग होगा टर्मिनल्स का या वो नल होगा। ठीक होगी जी बात? S derives using production rules W, where W belongs to T का स्टार। T का स्टार मतलब टर्मिनल्स का स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल। अगर W किसको बिलोंग करता है? स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल को बिलोंग करता है, तो वो मेरी क्या हो जाएगी? लैंग्वेज हो जाएगी उस ग्रामर की। वो क्या हो जाएगी जी? लैंग्वेज हो जाएगी ग्रामर की। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जी इक्वल टू S ड्राइव्स ASB नल क्या है? ये मेरी लैंग्वेज है ग्रामर की। लैंग्वेज ऑफ ग्रामर क्या है? A की N, B की N, N ग्रेटर देन इक्वल टू 0। A की N, सेम नंबर ऑफ A's, सेम नंबर ऑफ B's, सेम नंबर ऑफ A's followed by same number of B's, and N is greater than equal to 0. Since there is a derivation, S drives star A and Bn for any N greater than equal to 0. So this is the language of the grammar. ये मेरी ग्रामर है, इसकी लैंग्वेज क्या है? सेम नंबर ऑफ एज फॉलोड बाय सेम नंबर ऑफ बीज, दैट इज A की N, B की N, N greater than equal to 0. कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के बारे में इसकी डेफिनेशन है, ए लैंग्वेज L इज कंटेक्स्ट फ्री इफ देयर इज ए कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर G विद L इक्वल टू LG। एक लैंग्वेज L को मैं कंटेक्स्ट फ्री कहूँगा अगर उसके कॉरस्पॉन्डिंगली एक कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर G एग्जिस्ट करती है, कि जो लैंग्वेज है उस ग्रामर की वो L के इक्वल है। L इक्वल टू लैंग्वेज ऑफ दैट ग्रामर, L इक्वल टू लैंग्वेज ऑफ दैट ग्रामर, तो उस लैंग्वेज को आप कंटेक्स्ट फ्री कहेंगे। For example, L equal to A की N, B की N, N greater than equal to 0 is a context free language. Since the context free grammar G equal to S drives ASB or null generates LG equal to L, यानी कि
एल है वो किसके इक्वल है, लैंग्वेज ऑफ दिस ग्रामर के इक्वल है। एल किसके इक्वल है, लैंग्वेज ऑफ दिस ग्रामर के इक्वल है, तो हम जाके क्या कह देंगे कि ये एक कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। ठीक है जी। अगर आप उसको सेट में लिख दो, सेट की फॉर्म में लिख दोगे तो लैंग्वेज हो जाएगी, प्रोडक्शन रूल्स की फॉर्म में लिख दोगे तो वो ग्रामर हो जाएगी। अदरवाइज वी कैन यूज इंटरचेंजेबली द नेम ग्रामर और लैंग्वेज। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर जी इक्वल टू एस ड्राइव्स ए एस ए बी एस बी नल, ए एस ए बी एस बी नल। अब 3 रूल हो गए हैं, पहले 2 रूल थे, अब 3 कर दिए हैं। चलिए, और यहाँ पे ए एस बी था, अब ए एस ए बी एस बी नल है। फॉर एग्जाम्पल अब डेरिवेशन, ये मेरी डेरिवेशन, अब इसमें क्या क्या बनेगा, एस ड्राइव्स ए एस ए, अगली बार इस एस को किसके साथ रिप्लेस किया, बी एस बी के साथ रिप्लेस कर दिया, अगली बार इस एस को किसके साथ रिप्लेस कर दिया, नल के साथ कर दिया। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रिंग बनेगा ए बी बी ए बी बी। और देखते हैं एस ड्राइव्स ए एस ए, फिर इस एस को रिप्लेस किया बी एस बी के साथ, फिर एस को रिप्लेस किया ए एस ए के साथ। ठीक होगी जी बात। फिर एस को किसके साथ रिप्लेस किया, नल के साथ। तो ये क्या बन गया, ए बी ए बी ए फॉलोड बाई ए बी। सो लैंग्वेज क्या है इस ग्रामर की, WWR। ये एक पैलिंड्रोम होता है, चेक कर लीजिए, ये एक पैलिंड्रोम है। पैलिंड्रोम मतलब जिसको आगे से रीड करें चाहे पीछे से रीड करें वो सेम स्ट्रिंग होगा। अगर चाहे आप आगे से रीड करें चाहे पीछे से रीड करें, इट इज द सेम। सो इसको WWR कहेंगे, यानी कि एक तो स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग का रिवर्स, इन दोनों को जोड़ के ये स्ट्रिंग बना है। ये स्ट्रिंग और स्ट्रिंग का रिवर्स, ये देख लीजिए, ये स्ट्रिंग है ए बी, ये उसका रिवर्स बी है। तो W बिलोंग टू ए बी का स्टाफ, दैट इज पैलिंड्रोम्स ऑफ इवन लेंथ। ये इवन लेंथ के पैलिंड्रोम है, ऑड लेंथ का। मान लीजिए अगर मैं ए बी ए लिखूं तो ये ऑड लेंथ का पैलिंड्रोम है, अगर मैं ए बी बी ए लिखूं तो ये इवन लेंथ का पैलिंड्रोम है। ठीक होगी जी बात। सो ये जो लैंग्वेज है वो इवन पैलिंड्रोम्स ऑफ इवन लेंथ है, पैलिंड्रोम्स ऑफ इवन लेंथ। दिस ग्रामर जनरेट्स स्ट्रिंग्स ऑफ इवन लेंथ that are palindromes। एक और एग्जांपल देखते हैं कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर की। एस ड्राइव्स ए एस बी, एस ड्राइव्स एस एस, एस ड्राइव्स नल। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। सो सबसे पहले एस को डबल एस के साथ रिप्लेस किया, फिर अगली बार क्या किया, पहले वाली जो एस है उसको ए एस बी के साथ रिप्लेस कर दिया, फिर जो ये इधर ये वाली एस है इसको किसके साथ रिप्लेस कर दिया, नल के साथ रिप्लेस कर दिया, तो ए बी एस आ गया। फिर इस एस को भी नल के साथ रिप्लेस कर दिया तो मेरे पास ए बी बच गया। सो सिंपली ए बी बच गया। ठीक होगी जी बात। आप सिंपली ऐसे भी करते हैं, एस ड्राइव ए एस बी, एस ड्राइव नल, तो भी ए बी बन जाएगा। अगर आप 2 बार यूज़ करो एस ड्राइव एस एस, एस ड्राइव पहले को ए एस बी, फिर इसको नल के साथ रिप्लेस करो, इसको भी नल के साथ, तो ये भी बन जाएगा। सो अब दूसरा देखते हैं, एस ड्राइव एस एस, फिर पहले एस को ए एस बी के साथ रिप्लेस कर दिया, फिर इस एस को नल के साथ रिप्लेस कर दिया तो ए बी एस बच गया, फिर एस को ए एस बी के साथ रिप्लेस कर दिया। ठीक होगी जी बात। फिर इस एस को नल के साथ कर दिया तो ए बी आ गया। तो ये क्या है, इक्वल नंबर ऑफ एज। इस स्ट्रिंग के अंदर जितनी ए है उतने ही बी है, जितनी ए है उतने ही बी है, जितने ए है उतने ही बी है। लैंग्वेज ऑफ दिस ग्रामर जी इज इक्वल टू डब्ल्यू, वेयर नंबर ऑफ ए इन डब्ल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी इन डब्ल्यू। जितने ए है स्ट्रिंग के अंदर उतने ही बी है। या आप एक दूसरा भी कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ एज है, नंबर ऑफ एज वो हमेशा ज़्यादा होंगी या इक्वल होंगी नंबर ऑफ बीज के साथ इन एनी प्रीफिक्स बी। अगर मैं इस स्ट्रिंग का कोई प्रीफिक्स ले लूँ, प्रीफिक्स मान लीजिए, प्रीफिक्स क्या होता है, आगे का स्ट्रिंग। जैसे मान लीजिए, इसको क्लीन कर लेते हैं, मान लीजिए ये प्रीफिक्स है इसका ए, सिंगल एक प्रीफिक्स है। सो नंबर ऑफ एज आर मोर देन नंबर ऑफ बीज। इसके अंदर ए ज़्यादा है क्योंकि बी है नहीं, ए है। अब मान लीजिए मैं ऐसे कर लिया, प्रीफिक्स ए बी है तो इक्वल हो गई नंबर ऑफ एज एंड बी, इक्वल हो गई। फिर अगला ए बी ए ले लिया, उसके अंदर भी क्या होगी, ए ज़्यादा होगी, 2 ए होगी, 1 बी रह गई। अगर पूरे का पूरा स्ट्रिंग वो भी एक प्रीफिक्स है ए बी, तो उसके अंदर नंबर ऑफ एज इक्वल टू नंबर ऑफ बीज होगी। कोई भी आप प्रीफिक्स लें इस स्ट्रिंग का, उसके अंदर नंबर ऑफ एज है वो या तो बी से ज़्यादा होंगी या उसके इक्वल होंगी। इसको मैं मैचिंग ऑफ पैरेंथेसिस भी कह सकता हूँ। मैचिंग ऑफ पैरेंथेसिस के लिए भी इसी तरीके की लैंग्वेज यूज़ की जा सकती है। मैचिंग ऑफ पैरेंथेसिस मतलब जितनी लेफ्ट पैरेंथेसिस हैं उतनी ही राइट पैरेंथेसिस हैं। अगर मैं ए को लेफ्ट पैरेंथेसिस से रिप्लेस कर दूँ, बी को राइट से कर दूँ,
ए को लेफ्ट से कर दूं, बी को राइट के साथ कर दूं, बाकी सारी चीज़ें सेम रहने दूं, तो ये लैंग्वेज मेरी क्या बनेगी, मैचिंग ऑफ पेरेंसेस। क्या बन जाएगी जी, मैचिंग ऑफ पेरेंसेस। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।